Welcome to Shriprati Education Online Classes. So today we are going to start a new lecture of Python that is built-in data types. So take a look. In programming, data type is an important concept. Very important concept hai. You can also learn in the C, C++, Java. So data type is a very important concept. Variable can store data of different types. The variable that can store the data of different types, and different types can do different things. If you are storing a value in a data type of int, then it can store the data of int. If you are storing a value in a variable into the data type of float, then it will store the data type the variable of float type like 2.4, 2.3, 5.5. Okay. And when you अगर आप इसको int में convert करें उससे वो 2.4 को कैसे देगा? It will only answer to you only 2 if you are store it in a int. So variables can store data of different types can do different things. Python has the following data types built in by default in this category, like text type string, numeric type int, float, complex, sequence type में list, tuple, range में divide कर दिया गया है इसको sequence type को, mapping types में dictionary type आ गया, dict बोलते हैं जिसको हम, set type में set और frozen set आ गए, boolean type में bool हो गया, binary types में bytes आ गए, bytes array आ गए, memory view आ गया. So these are the different types of data type that are present in the Python. Identify the type of variable in Python. As you know that Python is built-in data types. Python में built-in data types होते हैं. To identify the type of variable, we use the type function. For identifying the type of variable, we use a type function because in Python we don't need to declare the type of a variable. What we do in our previous lecture, we see कि हमने कैसे क्या असाइन करते थे वेरिएबल a is equals to 100. When a is equals to 100 हो गया तो हमने we don't declare any type of data type there. Okay, and which type of data type is this? So with the help of type function we can identify the type of data type. To get the type of any we use the type function. अगर हमें किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप, अगर हमने कोई वैल्यू स्टोर कराई है किसी वेरिएबल का और हमें उसका टाइप ऑफ डेटा जानना है या उसका हमें जानना है कि डेटा टाइप क्या है, अगर हमने नेम में एक राम स्टोर करा दिया है और राम स्टोर करा दिया, अब हमें जानना है कि भाई क्या है, तो उसमें तो हमने लिखा नहीं ना, क्योंकि पाइथन में हम उसको डिक्लेयर ही नहीं करते हैं डेटा टाइप को. तो हम विद द हेल्प ऑफ द टाइप फंक्शन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस टाइप का डेटा है. द डेटा दैट इज टू बी स्टोर्ड इन वेरिएबल इज विच टाइप, ये जानने के लिए हम उसमें देखते हैं. तो फिर टाइप फंक्शन में लगाया मैंने टाइप फंक्शन. अब जब टाइप फंक्शन में लगाया, टाइप फंक्शन यूज किया मैंने वहां पर, तो मैंने नेम लगाया, नेम में मैंने एक राम डाल दिया, नेम में वैल्यू स्टोर हो गई राम की, राम स्टोर हो गया एक वैल्यू. अब उसमें मुझे टाइप करना है तो मैंने कहा तो स्ट्रिंग टाइप आ जाएगा. आंसर क्या देगा पाइथन हमको, पाइथन में इंटरप्रेटर क्या आंसर देगा कि ये भैया क्या है, ये है राम. इन पाइथन डेटा टाइप इज सेट. डेटा टाइप क्या होता है, सेट होता है. व्हेन वी असाइन अ वैल्यू टू द वेरिएबल, जो पाइथन में डेटा टाइप होता है वो सेट होता है जब हम उसको असाइन करते हैं कोई वैल्यू को वेरिएबल में. नाउ पहले से ही सेट होता है क्योंकि हमें इसमें सिर्फ जानना होता है, क्योंकि हम इसमें कोई डिक्लेयर नहीं करते हैं. सेट हमने a इज इक्वल टू 2.5 दे दिया तो वहां पे आइडेंटिफाई हो गया कि ये फ्लोट टाइप है. अगर हमने 2j कर दिया तो उसको पता चल जाएगा इसमें एक कॉम्प्लेक्स टाइप का भी डेटा टाइप होता है पाइथन में. अगर हमने 2j कर दिया तो वो टाइप करके क्या दे देगा, टाइप करके हमको देता है कॉम्प्लेक्स. ये एक अलग टाइप का डेटा टाइप है दैट आर प्रेजेंट ओनली इन पाइथन. ओके, सो टेक अ लुक. अब जैसे यहाँ कंसिडर द फॉलोइंग टेबल. डेटा टाइप क्या है, जस्ट अ सेकेंड, आई विल यूज अ pen here so it will be very helpful for you to understand it. Int. So program हमने क्या बनाया, here I am declaring just a equals to 25. Variable is a and it stored the value 25. Now what I do, print a. So it print the value here. Now I want to identify the type of the variable. So print type function and the name of the variable. This, ठीक है, this यहाँ आ गया. देन इसने हमें बताया कि क्लास कौन सी आ रही है, ये इंट आ गई, कि ये इंट टाइप का है. अगर मैं यहाँ पे क्या करती, अगर मैं यहाँ पे कर देती 2.5, अगर मैं यहाँ पे 2.5 कर देती इसी को, ठीक है.
अगर मैंने यहाँ 2.5 करा, प्रिंट करती तो यहाँ क्या आ जाता, 2.5 आ जाता। ठीक है, और प्रिंट करके टाइप क्या दे देता, यहाँ पे कौन सी क्लास बताता मुझे, ये वाली क्लास ना देके वो क्या बताता मुझे कि ये फ्लोट है। क्या है, ये फ्लोट है। ये फ्लोट है। नाउ सेकेंड वन इज फ्लोट, ये हम पढ़ ही चुके हैं। अब देखो फ्लोट में 25.5 प्रिंट करवाया मैंने, टाइप ए 25.5, क्लास में क्या आ गया, फ्लोट आ गया। नाउ द स्ट्रिंग, अब देखो जो स्ट्रिंग है, नेम में मैंने डाला हेलो, प्रिंट कर दिया टाइप, नेम में डाल दिया हेलो, तो क्लास दे दी स्ट्रिंग। दिस इज द स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल, स्टोर वैल्यू स्टोर की गई है। द वैल्यू दैट इज टू बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल इज द टाइप ऑफ स्ट्रिंग, सो द डेटा टाइप इज स्ट्रिंग। नाउ x इज इक्वल्स टू 24j, प्रिंट टाइप x करवाया हमने, तो क्लास क्या हो गई, कॉम्प्लेक्स हो गई। क्लास क्या हो गई, कॉम्प्लेक्स हो गई। Here, the variable that store the value 24j is of class type. The data type is complex. The class type तो बता रहा है वो. The data type is complex. Now we will see the list data type. List data type. Here, the variable name is name and the values that the variable name store Ram, Sham, Mohan, Sohan, and then print to identify the type of the data type. So type name, then it will show the output list. It belongs from the list data type. And always remember that list always use square brackets. Now the tuple, the sixth data type is tuple. Here the variable type is student. Okay, the variable student store the values Ria, Priya, Tia. Okay, and the tuple, the difference between the tuple and the list is tuple uses round brackets and list uses square brackets. Now print student, so it will print the name of students here. Then print to identify the type of data type of student, then type student. It belongs from the class tuple. It is a data type tuple. Now set numbers. Numbers is a variable which store the values 2, 4, 6, 8, 10, 12. Print किया numbers. Then type किया numbers and then सबसे पहले जब print किया, so it will print 2, 4, 6, 8, 10, 12. Then to identify the data type of the numbers, then type numbers and class set. Now we come on to the frozen set. So the variable name is alphabet and specify that it is a frozen set. Frozen set, here we are using tuples and set. So tuples के लिए हमने क्या यूज करते हैं, राउंड ब्रैकेट्स, और सेट के लिए हमने कर्ली ब्रेसेस यूज किए हैं। सो कर्ली ब्रेसेस में ए बी सी डी आ गया, तो ये स्पेसिफाई कर दिया कि ये फ्रोजन सेट को फ्रोजन सेट है। वैल्यू इसमें जो वैल्यू स्टोरी हो रही है वो फ्रोजन सेट टाइप की है। देन प्रिंट अल्फाबेट, व्हेन वी प्रिंट अल्फाबेट्स तो फ्रोजन सेट पहले यहाँ पे हो गया बी डी ए सी आउटपुट में, फिर प्रिंट टाइप टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अल्फाबेट्स, तो क्लास इट बिलोंग्स फ्रॉम द फ्रोजन सेट। नाउ द नाइन डेटा टाइप इज बूल। Bool always gives the answer in true or false and it will show true or false. तो हम क्या करेंगे कि a is equals to हमने किया true, हमने एक वैल्यू true or false, it store only the type of value true or false store करता है, तो हमने a is equals to true कर दिया। Now we want to identify the which type of data type is this, so print type a। अब जब हमने type a कर दिया तो उसमें क्या आया true, तो क्लास क्या, जब हमने इसमें क्या वैल्यू दी है, true दी है, टाइप कर दिया टू आइडेंटिफाई द टाइप डेटा टाइप, तो ये हो गया बूल डेटा टाइप। नाउ रेंज, a is equals to range 7,
प्रिंट कर दिया ए, प्रिंट टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ए, एक डेटा टाइप होता है एक रेंज का, तो ये बता देगा कि रेंज जो पहले तो हमने जब प्रिंट करा तो प्रिंट में वो बता देगा कि 0 से स्टार्ट होके 7 तक है इसकी रेंज, क्योंकि हमने यहाँ पे 7 डिक्लेयर किया है, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, तो 0 से स्टार्ट होके 7 है। और जो टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ए, तो उसने बता दिया दिस इज अ रेंज, दिस बिलोंग्स फ्रॉम द रेंज क्लास, ये रेंज क्लास से बिलोंग करता है। नाउ द बाइट्स, नाउ अगर हमें कुछ बाइट्स का यूज करना है तो हम उसमें क्या करते हैं, बी यूज करते हैं पहले। इन द इनिशियल लेवल एट द स्टार्टिंग पॉइंट में हम क्या यूज करते हैं, बी, सो a is equals to b and then the string hello how are you in the double quotation, or you can use it in a single quote. Print type a, so b से इसने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बाइट्स है, द टाइप डेटा टाइप इज बाइट्स। नाउ बाइट एरे, a is equals to बाइट एरे में हमने दे दिया 7, यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया, तो बाइट एरे एक डेटा टाइप है जिसको हमने 7 दे दिया। प्रिंट ए किया, जब हमने प्रिंट ए किया तो उसमें कैसे दिया कि हमें बाइट एरे बी स्पेसिफाई कर दिया, जैसे कि हमने देखा पीछे कि बी, इसको हम कैसे करते हैं, हमेशा बी से ही करते हैं, बी से, तो अब इसमें भी बाइट्स के लिए बी यूज हो गया। फिर इसको कैसे 1 2 3 4 5 6 7, अगर यहाँ पे 6 होता तो ये नहीं होता, ये नहीं आता, तो ये 6 हो जाते 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 5 होता तो 5 देता 1 2 3 4 5, ऐसे करके बाइट एरे होता है। नाउ डिक्ट, डिक्ट इज कॉल्ड एज डिक्शनरी, इसका कैसे डिक्लेरेशन होता है, स्टूडेंट इज अ वेरिएबल एंड स्टोर्स, इसके साथ टैग नेम भी स्टोर करता है ये, जैसे कि नेम, तो नेम में हमने राम दे दिया, एज में इसमें हमने 34 दे दिया, और अगर कुछ क्लास हम करते आगे तो क्लास इज इक्वल्स टू 10th, क्लास कॉलन 10 दे देते। सो दिस इज द डिक्लेरेशन कि हम इसका कैसे इसका सिंटेक्स होता है, तो दिस इज अ सिंटेक्स टू डिक्लेयर डिक्ट। प्रिंट स्टूडेंट करा दिया, अब इसमें प्रिंट कर दिया कि नेम राम है, एज 34 है। नाउ टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, अब इस तरीके का किस में होता है, इस तरीके का सिंटेक्स ही किस में है, तो उसने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये भाई डिक्शनरी टाइप का, डिक्ट टाइप का डेटा टाइप है, ठीक है। नाउ वी विल रीड, thank you. We will consider the setting the specific data type in our next lecture. So please stay safe at your home during the coronavirus, and don't forget to subscribe our channel and also press the bell icon for the latest update. Or to see the previous video, please click on to the I button. Thank you.